دوست جو یہاں تشریف لائے ہیں اور سب سے اہم ترین لوگ جو یہاں اس تقریب کے وی آئی پی ہیں، جو یہاں بنیار کے عام لوگ اتنی ہیوی تعداد میں یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا احترام دیا، اتنا پیار دیا، اتنی شفقت دی۔ میں نے سنا یہ تھا کہ اوڑی کے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت شکلیں بھی ہیں اور خوبصورت دل بھی ہیں، زیادہ امپورٹنٹ خوبصورت دل ہوتا ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا، بارہمولہ کا شاید تاج ہے اور بارہمولہ کی شان شاید اوڑی اور بنیار کا علاقہ ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی، اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ذکی الحس ہوتے ہیں، بڑے فہم والے لوگ ہیں۔ تو میں نے آج دیکھا کہ آپ سب لوگ بہت بہترین طریقے سے اس فنکشن میں جو پورے ملک میں منعقد کیا جا رہا ہے، پورے ملک میں وکست بھارت سنکلپ یاترا چل رہی ہے اور آج آپ کے ہاں اوڑی سب ڈویژن میں بنیار میں پہنچی ہے اور اس کے بعد آگے بھی جائے گی بالکل اپ ٹل ایل او سی۔ یہ یاترا اور اس طرح کے فنکشنز عوام کے اور سرکار کے درمیان جو رشتے ہیں ان کو اور استوار کرنے کے لیے سٹیپس ہوتے ہیں۔ عوام اور سرکار کا رشتہ بہت مستحکم بنے اور جو سرکار کی سکیمز ہیں، جو سرکار کے بینیفٹس ہیں، جو آپ لوگوں کے لیے، ہم سب لوگ یہاں جو سرکار میں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، خواہ وہ چھوٹا ملازم ہو یا بڑا افسر ہو، ہم سب لوگ وقف ہوتے ہیں آپ کے لیے، ہم سب لوگ کام کرتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کی زندگی میں کچھ پازیٹیو چینج یا پازیٹیو تبدیلی آئے۔ آج کی یہ وکست بھارت سنکلپ یاترا کا یہ پڑاؤ جو بنیار میں طے پایا گیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ میں نے یہاں کچھ بہنوں سے بات کی جن کو ابھی یہ چولہے دیے گئے ہیں، میں نے کہا جی آپ اس سے پہلے کیسے کھانا پکاتے تھے؟ تو کہتے ہیں جی کہ ہم وہ چولہے پہ پکاتے تھے، جیسے پرانے زمانے میں چولہے پہ کھانا ہوتا تھا، تو اس کی وجہ سے ریسپریٹری دقتیں، اس کی وجہ سے دھواں، اس کی وجہ سے بچوں کو دقت پریشانی، اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آنا، اور میں ان کی خوشی دیکھ کے یقین جانیے میرا دل بھر آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ اب ہمیں اس سب سے نجات ملے گی۔ تو جو اجولا اسکیم ہے وہ ہے، یہ ہیومن سٹوریز ہیں۔ اسی طرح سے جل جیون مشن، چونکہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے کہ میں جے جے ایم میں کام کرتا تھا پہلے، جے جے ایم میں جس دور دراز پہاڑی علاقے میں ہماری ماں کو، ہماری بہن کو، ہماری بیٹی کو نیچے جا کے پانی لانا پڑتا تھا، اب وہ اس کوفت سے درپیش نہیں ہوگی، اب اس کے گھر تک جے جے ایم کا پانی پہنچے گا۔ کافی علاقوں میں تقریباً 75% کراس کر چکا ہے جموں کشمیر، پورے ملک کے صف اول کی جگہوں میں ہے۔ وہ ہدف یہ ہے کہ 100% ہر کسی گھر میں صاف پینے کا پانی نل سے ملے۔ اسی طرح سے آیوشمان بھارت، ابھی میں بات کر رہا تھا کسی سے، ہمارے کوئی فوج سے ریٹائرڈ ہیں بھائی، تو وہ کہتے کہ جی وہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہوا تو بڑی دقت پیش آئی، پیسے خوب لگتے ہیں اس میں، تو کیسے اس آیوشمان بھارت اسکیم نے کس طرح سے ان کی ایک تو زندگی بچائی، دوسرا مالی نقصان نہیں ہوا۔ وہ کارڈ تھا، آیوشمان بھارت کا کارڈ تھا، تو کیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کیسے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ میرا خود کارڈ بنا ہوا ہے، اگر خدا نہ کرے کبھی ضرورت پڑے تو مجھے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ نہیں میرے پاس آیوشمان بھارت کا کارڈ ہے، اتنے لاکھ تک کا میں اس میں کرا سکتا ہوں۔ میں نے اپنی مدر کا بنوایا ہے، باقی سب گھر والوں، آپ کی ڈی سی میڈم نے بنوا دیا ہمارا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کی ڈی سی صاحبہ اور یہاں کی سارا انتظامیہ جو ہے بہت محنت کر کے بارہمولہ ضلع کے لوگوں کے لائف میں، بارہمولہ کے لوگوں کی زندگی میں کیسے ایک مثبت تبدیلی، پازیٹیو تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو یہ سکیمز مختلف گورنمنٹ کی ہوتی ہیں، یہ صرف کاغذوں پہ نہیں رہتی ہیں، اب یہ زمین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن۔ مجھے لگتا ہے بارہمولہ ضلع کے لیے، اوڑی کے لیے، بنیار کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہوئی ہے وہ یہ نیشنل ہائی وے جو بن رہی ہے، جس کا ابھی کام زور و شوروں سے چالو ہے۔ ساؤتھ کشمیر جب ہم جاتے تھے تو پہلے زمانے میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگتے تھے، ٹریفک جام ہوتے تھے۔
बारामूला हम आते थे तो ट्रैफिक जैम है, चोकिंग है, गाड़ियां बढ़ गई हैं, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन रोड्स वैसे ही थे। ये हाईवे जो बना है इससे बारामूला जिले का, कुपवारा जिले का और तमाम अजला जो सब डिविजन यहाँ तहसीलें यहाँ हैं उसका नक्शा पलट जाएगा। आप श्रीनगर तकरीबन गिना के बारामूला से कोई तकरीबन 45 मिनट के आसपास का वक्फा आपको लगेगा। आप तेज चलाएं तो वो 35 मिनट तक पहुंच सकती है, 35-40 मिनट में आप श्रीनगर पहुंच जाएंगे। इससे कितने ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं आपकी डीसी साहिबा के, ये जिसको कहते हैं ना खैर दारैन, जिसको कहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए अबदन अबदा का सवाब है का काम है कि राह आम को किस तरह से आप उसको बढ़ाएं और कैसे वो मरीज जो बेचारा रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंस के मर सकता था, अब वो ऊपर वाले की मदद से आराम से पहुंच सकता है और इलाज मुआवजे के लिए। इसी तरह से इकोनॉमिक बेनिफिट्स, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई है। मैं टूरिज्म महकमे का सेक्रेटरी हूँ और मैं जब यहाँ आता हूँ, हमेशा जब मैं यहाँ आता हूँ, उड़ी आता हूँ, बारामूला आता हूँ और बुनियार जैसे इलाके में आता हूँ, मैं देखता हूँ इस जैसी फिजा, इस जैसी खूबसूरती, इस जैसे पहाड़, इस जैसे जंगल मेरा नहीं ख्याल कहीं और हमें है। और आपको ऊपर वाले ने सबसे बेहतरीन चीज जो दी है वो है कि आप सर्दी का माहौल भी रखते हैं, टेम्परेट रीजन भी है और आपके यहाँ गर्मी का माहौल है। तो वो कोई और जगह नहीं शायद कश्मीर वादी में जहाँ पे संतरे उगते हों, जहाँ पे ऑलिव्स उगते हों, जहाँ पे आपके लेमन्स उगते हों। तो ये सिर्फ और सिर्फ उड़ी का सब डिवीजन है और बुनियार का और उसके अतराफ के इलाके हैं जहाँ पे ये सब चीजें होती है। तो आपको ऊपर वाले ने बहुत ज्यादा दिया है, आपको ऊपर वाले ने बड़ी शफकत से दिया है। इसका कैसे हम पोटेंशियल सही मानों में रियलाइज कराएं और खास तौर पे चूंकि मैं टूरिज्म से वाबस्ता हूं, अभी टूरिज्म के लिहाज से यहाँ के नौजवानों को कैसे टूरिज्म से जोड़ा जा सके। मैं हैरान कुन आपको एक फिगर दे रहा हूँ, हमारी आबादी जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 40 लाख के आसपास है। आप जानते हैं कि टूरिस्ट कितने आए हैं हमारे पहले दिसंबर के हफ्ते तक? 7 दिसंबर तक हमने 2 करोड़ का टूरिज्म का फिगर क्रॉस कर लिया था, यानी आबादी से भी 60 लाख लोग ज्यादा तशरीफ लाए थे यहाँ टूरिस्ट बन के, खा वो पिलग्रिम टूरिस्ट हो, खा वो लेजर टूरिस्ट हो, एडवेंचर टूरिस्ट हो। ये सेक्टर तकरीबन 7.5%, 7.25% का जीएसडीपी कंट्रीब्यूट करता है। 22 लाख लोग इससे बिलवास्ता बिलावास्ता जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं और मेरी आपसे गुजारिश है यहाँ के नौजवानों से खास तौर पे कि आप टूरिज्म सेक्टर की इस इकोनॉमिक ग्रोथ से, इस बहुत लातादाद ग्रोथ से जुड़ जाएं ताकि हम ये 22 लाख लोगों को 44 लाख लोग बना सकें और जो 7.5% के आसपास का जीएसडीपी का पार्ट है आपकी इकोनॉमी का, वो 10% के आसपास हो। इससे बड़ी मुनफरिद चीजें होती हैं। एग्जाम्पल दूंगा आपको कि केरन जैसा इलाका जहां हमने होम स्टेज की ट्रेनिंग कराई और होम स्टे कराए, हजारों की तादाद में लोग जाके वहां बॉर्डर के पास रहते हैं। आपके पास यहाँ एलओसी है। मैं चाहता हूं और ऑनरेबल एलजी साहब की हमें डायरेक्शन है कि बॉर्डर टूरिज्म को खास तौर पे तवज्जो दें, क्योंकि हमारे यहाँ एलओसी बहुत लंबी है। तो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से वो देखना चाहते हैं कि एलओसी कैसी होती है। आपका तो रोज का होता है, लेकिन जो बाहर दिल्ली से, गुजरात से, महाराष्ट्र टूरिस्ट आता है उसके लिए एक बड़ा खास एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंशियल टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से ऑनरेबल एलजी साहब ने बड़ी सख्त हिदायत दी है कि वैसे इलाकों में भी टूरिज्म का प्रमोशन किया जाए जो अभी तक टूरिज्म मैप पे नहीं थे। इसलिए हमने 75 ऐसे इलाका जात शॉर्टलिस्ट किए हैं और उनको प्रमोट करना शुरू किया है। हमारी कोशिश है कि उड़ी बुनियार जैसा खूबसूरत इलाका उस लिस्ट में आ जाए। हमें आपसे ये ताउन चाहिए कि यहाँ के लोग, नौजवान खास तौर पे हमसे जुड़ जाए। मैं उनकी ट्रेनिंग या स्किलिंग कराऊंगा। होम स्टेज का खास तौर पे मैं कोशिश ये करूंगा, हमारे एडी साहब हैं, मैं उनको हिदायत दूंगा कि बारामूला में, उड़ी में, बुनियार में ट्रैकिंग का बड़ा ज्यादा ऑप्शन है। तो यहाँ ट्रैकिंग के रूट्स बहुत सारे हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर, अभी मैं एसडीएम साहब से बात कर रहा था, 10 किलोमीटर अगर ट्रैक करें तो आप गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। तो वो जो तमाम चीजें हैं उस जानिब हम खास तौर पे तवज्जो दिए जाएगी। और आपकी नौजवानों की मैं चाहता हूं कि यहाँ आप युवा टूरिज्म क्लब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हिदायत दी थी सब टूरिज्म मिनिस्ट्री को और टूरिज्म डिपार्टमेंट्स को कि आप हर गांव देहात जाके युवा टूरिज्म क्लब्स, इसको रोक दें या तो निकाल दें, सब
जगहों पे आप गांव देहात में युवा टूरिज्म क्लब बनाएं। युवा टूरिज्म क्लब का तरीका ये है कि आप यूथ क्लब टाइप बनाएं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म महकमे से ताल्लुक रखता है, कि होम स्टे बनाएं, उनकी अब किस तरह से स्किलिंग कराए जा सकते हैं, ट्रेनिंग कराई जा सकती है। तो मैं चाहता हूं कि आप बुनियार में, और एसडीएम साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उड़ी में प्लीज हैव सम काइंड ऑफ यूथ क्लब इनिशिएटिव टेकन। वी विल डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन उसकी ट्रेनिंग कराने के लिए और उनको टूरिस्ट गाइड्स बनाने के लिए, ट्रैकिंग गाइड्स बनाने के लिए, एडवेंचर टूरिज्म में डालने के लिए। तो उस तमाम चीज से आप लोगों के नौजवानों को एक तो रोजगार का सबील मिलेगा और दूसरा ये कि इस जगह को पूरी दुनिया में मायनाज करने में हमें कामयाबी हासिल होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारे साथ, जैसे आप सरकार के साथ पहले ही जुड़े हुए हैं, मुख्तलिफ स्कीम्स का आप फ़ायदा लेते हैं, जो पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्यूसल है, मैं ख़ास तौर पे मैं शाबाशी देना चाहूँगा और ख़ास तौर पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया को, हर महकमे को, हर टीम मेंबर को, खा वो डिप्टी कमिश्नर हों, खा वो एसडीएम साहब हों, एसीआर साहब हों, तहसीलदार साहिबान हो, सीएमओ साहब हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू महकमा हो, तमाम महकमों ने बहुत उम्दा काम किया है और लोगों के साथ जो ये कनेक्ट है उसको और उस्तवार करने की कोशिश की है। जो पब्लिक ग्रीवेंसेस का मामला है उसमें भी इन्होंने बड़ा मेहनत की है और मेरी पूरी उम्मीद है कि आपके जो भी मसाइल होंगे आपको सुनवाई मिलेगी और आपको उन मसाइल का निपटारा मिलेगा इंशाल्लाह। और हत्तुल इम्कान ये कोशिश की जाएगी कि इस तरह के फंक्शंस, इस तरह के इवेंट्स में लोगों की बढ़ चढ़ कर भागीदारी हो और लोगों को ही, ये आपके फंक्शन है, ये हमारे सरकार के और अफसरों के फंक्शन नहीं है, ये लोगों के फंक्शन है। तो ये जन भागीदारी है, आपके लिए है, हम सब यहाँ आपके लिए बैठे हैं। हम सब का बेसिक काम आपको सहूलत पहुंचाना, आपको इन सरकारी स्कीम्स का फायदा पहुंचाना और अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से सरकार का काम आप तक पहुंचाना। मेरी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी ये अच्छा काम जारी रहेगा और आप सब लोगों का साथ होगा हमारे लिए, और जो भी मसाइल हों आपके, उनका जल्द से जल्द इजाला किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर, पूरे वादी कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे मुल्क में उड़ी और बुनियार का नाम रोशन होगा और इसमें 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हैं पूरे मुल्क में इंशाल्लाह पॉजिटिवली मशहूर होना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एक मिशन चलाएं बोनियार, ताकि बोनियार में आ जाएं हम।